we are going to discuss a very important theorem again in this video. The theorem is when two triangles are on the same base and between the same parallels, then the triangles have equal area. Last time we have discussed same theorem about two parallelograms. That is, when two parallelograms are on the same base and between the same parallels, then the parallelograms have equal area. But here we will discuss the same condition for two triangles. Two triangles on the same base. Triangles on the same base and between the same parallels have equal area. See, we have two triangles. Triangle A, B, C. This one is a triangle. Then triangle D, B, C. These two triangles are on the same base, BC. Here, BC is the base. And BC is parallel to AD. If I join AD, BC is parallel to AD. It means these two triangles are on the same base, BC, and between the same parallels, BC and AD. So what is given? Two triangles. Triangle is ABC and triangle DBC. So हमने लिखा two triangles ABC and DBC on the same base, BC, and between the same parallels, BC and AD. Parallels are BC and AD. Proof क्या करना है? Area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC. हमें प्रूव करना है इन दोनों triangles का एरिया इक्वल है. So देखिए, ABC and DBC are two triangles. बेसिक जो स्पोर्टिंग फिगर थी वो ऐसे थी. दो triangles हमने कंस्ट्रक्ट की. नाउ कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से B से CA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे. जस्ट लाइक देखिए, दिस वन इज CA. सो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, दिस वन BE. B से क्या ड्रॉ किया? BE पैरेलल टू CA. ये लिखा थ्रू B. ड्रॉ BE पैरेलल टू, ये दो साइड से हमारे पास एक CD है और एक BA है. फर्स्टली हमने CD के पैरेलल हमने BE ड्रॉ किया. ड्रॉ BE पैरेलल टू CD. BE पैरेलल टू CD. आफ्टर दैट यहाँ से C से भी एक लाइन ड्रॉ की. वो किसके पैरेलल है? BA के पैरेलल. C से लाइन ड्रॉ की. क्या नाम है इसका? CF पैरेलल टू BA. CF पैरेलल टू BA. अब आप ध्यान से अगर देखेंगे, वी हैव BC पैरेलल टू AD. ऐसा तो पहले से ही था. अब AD को ही हमने प्रोड्यूस किया है दोनों साइड. सो वी कैन से BC इज पैरेलल टू EF. BC एंड EF, दीज टू आर पैरेलल. उसके बाद BE इज पैरेलल टू CD. आप देखेंगे वी हैव B, C, D, E. ये हमने कंस्ट्रक्ट की B, C, D, E. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC एंड DE आर पैरेलल. कुछ क्वेश्चन कह सकते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं. BC एंड DE, दीज टू आर पैरेलल. बिकॉज BC और AD पैरेलल थे तो AD को ही प्रोड्यूस किया. BC एंड DE, दीज टू आर पैरेलल. देखिए, BC इज पैरेलल टू DE. आफ्टर दैट बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? BE and CD, these two are also parallel. BE, CD, ये दोनों भी पैरेलल हैं. जब ये दोनों पैरेलल हैं, both the pairs of opposite sides are parallel. Therefore, BCDE is a parallelogram. ये parallelogram बन जाएगी. यहाँ देखेंगे आप BC and AF. BC and AF, these two are parallel. Because AD parallel था तो AF भी parallel ही होगा BC के. BC is parallel to AF. BC parallel to AF. Then BA पैरेलल टू CF. ये थ्रू कंस्ट्रक्शन है. जब यहाँ पे भी दोनों पेयर्स पैरेलल हो जाएंगे, देन वी कैन से दीज टू पैरेललोग्राम्स, दीज टू आर पैरेललोग्राम्स. पहले इन दोनों को मैं पैरेललोग्राम्स बोल लूँ. जब ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, ध्यान देंगे अब आप, B, C, D, E. दिस वन इज अ पैरेललोग्राम. आफ्टर दैट B, C, F, A. दिस वन इज अ पैरेललोग्राम. Both the parallelograms are on the same base BC. बेस दोनों का सेम है. एंड BC, EF, these two are parallel. So these two parallelograms are on the same base and between the same parallels. We have discussed theorem 9.2. theorem 9.2 में हम डिस्कस किया, when two parallelograms are on the same base and between the same parallels, then the parallelograms have equal area. This is theorem 9.2. So इसी theorem का हम यहाँ पे यूज करेंगे. फर्स्टली अभी हमने क्या किया? BE is parallel to CD. BE is parallel to CD. Since लिखेंगे यहाँ पे BE parallel to CD, ऐसा है. एंड और क्या है यहाँ पे? BE
पैरेलल टू CD, आफ्टर दैट BC पैरेलल टू DE, ये दोनों भी पैरेलल है, BC पैरेलल टू DE, इससे क्या होगा BCDE, therefore BCDE is a parallelogram, ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। उसके बाद आप यहां देखेंगे BC is parallel to AF, BA is parallel to CF, यहां एक बार फिर देख लें BE parallel to CD, BE parallel to CD and यहां फिर से लिखेंगे BC parallel to BE is parallel to CD, BC is parallel to ED, ये पैरेललोग्राम बन गई। उसके बाद यहां देख लें ऑल्सो BC is parallel to AF and और क्या है BA is parallel to CF, therefore BCFA is a parallelogram। ये दोनों पैरेललोग्राम्स है। अभी हमने डिस्कस किया कि these two parallelograms are on the same base and between the same parallels, since parallelogram कौन सी BCDE and parallelogram second one is BCFA are on the same base and between the same parallels, अब आप चाहें तो बेस और पैरेलल्स के नाम भी लिख सकते हैं, are on the same base and between the same parallels, therefore area of parallelogram, which one BCDE is equal to area of parallelogram, second one is BCFA. These two parallelograms have equal area, let it be equation number 1। एक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होगा, सी BCDE, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, अभी हमने डिस्कस किया। अब आप यहां देख रहे हैं BCDE, हियर BD इज ज्वाइंट, B और D को ज्वाइन किया, मतलब अगर मैं यहां से BD को ज्वाइन कर दूं, व्हाट इज BD? BD इज डायगोनल, यहाँ BD डायगोनल है। सेकेंडली BCFA, यहाँ पे AC को ज्वाइन किया होगा, मैं AC को ज्वाइन कर रहा हूँ, we have discussed in theorem 9.1 diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area, हमने किया ऐसा। This one is a parallelogram, this one is diagonal, it means इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। जब दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया इस पूरे एरिया का हाफ होगा, किसी भी एक का, सपोज इसका एरिया पूरे एरिया का हाफ होगा। सेकेंडली इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, इट मीन्स यहाँ पे भी किसी एक का, सपोज ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया पूरे एरिया का हाफ होगा, अभी हमने डिस्कस किया। देख रहे हैं आप BCFA, अब देखिए BCDE, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है सो वी कैन से ABCF, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, AC यहाँ पे हमने ज्वाइन किया। सेकेंडली हमारे पास क्या है BCDE, दिस वन इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैं ये रूल लिखूंगा, we know
diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, दिस वन इज थ्योरम 9.1. ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल, बिकॉज दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, तो डायगोनल क्या कर रहा है, इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है. इट मीन्स एक ट्राइंगल के एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो आप याद रख लेंगे, मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ बी सी डी, या फिर एरिया ऑफ डी बी सी, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. Therefore, एरिया कौन सा लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल. फर्स्टली हमने कौन सी ली, हमारे पास पैरेललोग्राम है बी सी डी ई. ओके, बी सी डी ई, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी. अभी डिस्कस किया था हमने, डीबीसी का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. कौन सा, बी सी डी ई, बी सी डी ई ऐसे आएगा. एंड सेकेंड क्या है यहाँ पे, सेकेंडली हमारे पास पैरेललोग्राम है बी सी एफ ए, इसमें ए सी डायगोनल है. सो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कौन सी है यहाँ पे, पैरेललोग्राम अभी हमने डिस्कस किया बी सी एफ ए. तो अभी जो मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम्स ड्रॉ की थी, अगर वो ड्रॉ करके आप रखते हैं तो आपके लिए समझना इजी होगा. बी सी एफ ए, दिस वन. नाउ यू कैन से this one is equation number 2, this one is equation number 3. If we compare these three equations from equations 1 2 3, देखिए बड़ा अच्छा रिजल्ट है यहाँ से. This one is equation 1, equation 2 and equation 3. फर्स्ट आप equation 2 और 3 के देखें. एरिया पैरेललोग्राम बी सी डी ई, एरिया पैरेललोग्राम बी सी एफ ए, एरिया पैरेललोग्राम बी सी डी ई, एरिया पैरेललोग्राम बी सी एफ ए. मतलब ये दोनों इक्वल है. दीज टू आर इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1. इट मीन्स दीज टू आर इक्वल. अगर ये दोनों इक्वल हैं, वी कैन से राइट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 and 3 आर इक्वल. अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम इक्वेट कर सकते हैं. दिस इज क्वेश्चन. एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी, डी बी सी इक्वल टू, यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन, ए बी सी. यही हमें प्रूव करना था. एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी. एक बार फिर ध्यान रखें, वी आर गिवन टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल. सो हमने यहाँ पे क्या किया, एक के पैरेलल भी यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, दूसरे के पैरेलल भी यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. दैट इज हमने दो पैरेललोग्राम्स यहाँ पे कंप्लीट किया एंड बोथ द पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel. So areas of two parallelograms are equal. After that we use the concept diagonal of a parallelogram divides it into two triangles of equal area. So it's better अगर आप यहाँ से जो पैरेललोग्राम्स बन रही हैं उनको साइड पे कंस्ट्रक्ट कर लें, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्ट किया था. So जब दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा, एक ट्राइंगल के एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ, मतलब ABC का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ. सेकेंडली ट्राइंगल डीबीसी का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ. सो जब हम तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयरिंग ऑल द थ्री इक्वेशंस वी कैन से areas of these two triangles are equal. So this is when two triangles are on the same base and between the same parallels, then the triangles have equal area. Thank you.